First is light moving from rarer to denser. From rarer medium to denser medium. And we will always assume first medium refractive index is mu1, second is mu2. इसका सब केस convex towards rarer. कि अगर हम rarer साइड से देखें तो it's a convex surface. So convex towards rarer. सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं. Light moving from rarer to denser. Say denser medium. Second medium है तो refractive index is mu1. ये principal axis. Point object is placed somewhere over here. Light reflected by the object. It moves from rarer to denser. If it moves from rarer to denser, it bends towards normal or away from normal. Rarer to denser, it will move towards normal. Normal बनानी है तो ये curved surface. इसका center of curvature it will lie somewhere over here. तो ये हमारी normal ray. Angle which incident ray makes with normal. There is angle of incidence. अगर बैंडिंग ना होती this will be the path. The ray bends towards normal. कि ये normal है इस तरफ bend करके. If bending is large, final image is formed somewhere over here. Refracted ray का जो normal के साथ angle बना that is R. Incident ray का principal axis के साथ angle alpha, ये beta, ये gamma. ये pole of refracting surface. Object का distance pole से minus u. Image का distance plus v because right side पे है center of curvature plus r. Diagram देखो पहले समझ आ रहा है. डायग्राम समझ आ रहा है बिकॉज पेपर में डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा फिर डेरिवेशन होगी. डायग्राम में देखो कुछ नहीं समझ आया तो जस्ट सी द डायग्राम. क्लियर है सबको? पहले डायग्राम बना लो देन विल राइट द थ्योरी अबाउट इट. सिर्फ डायग्राम बनाओ पहले. सर इसकी हेडिंग क्या है? क्या चीज? इसकी हेडिंग से यही है कन्वेक्स टुवर्ड्स रेयर. नहीं ऊपर है पहले डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस. फिर फर्स्ट केस है लाइट मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और ये फिर सब केस है कन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर. Convex towards rarer. And this is real image.
बिकॉज अगर बैंडिंग स्मॉल होगी तो हम एक और केस करेंगे वर्चुअल इमेज. This real image is formed at I. हमेशा स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी रहेगी. इंसिडेंट रे का एंगल हमेशा अल्फा मार्क करेंगे. रिफ्रैक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, नॉर्मल का गामा. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन आपको पता है, दे आर आई एंड आर. एक डेरिवेशन हर साल ही आती है बोर्ड एग्जाम में. अगर 6 डेरिवेशंस हैं तो वो सेट्स में दे देते हैं. किसी को कोई डेरिवेशन दे देंगे, किसी को कोई. जैसे 6 एक जैसी डेरिवेशंस है. बन गया डायग्राम. So you're right. Consider a point of Yes, sir. consider a point object O placed in rarer medium of refractive index mu1, light reflected by the point object. Light reflected by the point object moves from सर एक बार rarer. रेडियल मीडियम की बात बोल दो दोबारा प्लीज. Light reflected by point object moves from rarer to denser medium and bends towards the normal. If bending is large, real image of the object is formed at I. Using Snell's law. Using Snell's law, sin I by sin R. Using Snell's law, sin I by sin R is equals to mu2 by mu1. Sin I by sin R is equals to mu2 by mu1. If I and R are small, because normally हम aperture को small लेते हैं, then sin I is equals to I implies also. डायग्राम देखो ये दोबारा से. I is equal to alpha plus gamma.
ठीक है ये स्टेप. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. Similarly, gamma is r plus beta, so r is gamma minus beta. ठीक है ये स्टेप देख लो एक बारी. I is alpha plus gamma, r is gamma minus beta. I can write this as mu2 minus mu1 gamma mu1 alpha plus mu2 beta. ठीक है. डायग्राम से चेक करना जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ. Substitute 2 in 1. AP1 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा. CP1 is plus R. IP1 is plus V. OP1 is minus U. तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा. Relation between object distance, image distance, radius of curvature, and refractive indices. Mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. और सब डेरिवेशंस में कंसेप्ट यही रहना है. सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाना है. साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू mu2 by mu1. साइन आई एंड आर आर स्मॉल. साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को आर. तो उसके बाद आई और आर की वैल्यू पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा. फिर अल्फा बीटा को टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा और वो सब्स्टिट्यूट. दैट्स इट. बस 6 डेरिवेशंस ऐसी हैं. कोई स्टेप में चेंज नहीं है. सिर्फ ये आई और आर की वैल्यू बदलेगी. डायग्राम्स बदलेंगे और आई और आर की वैल्यू बदलेगी. सर ऊपर कर दो.
देखो क्लियर है सबको कैसे किया? इसमें हमने लिया था कि बेंडिंग इज लार्ज टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंड करना है, पर अगर बेंडिंग स्मॉल हो, मतलब मैंने इसको इतना ज्यादा बेंड कर दिया कि इधर जा रही थी और यहाँ आ गई, बट अगर ये इतना बेंड ना करे, थोड़ा कम बेंड करे, अगर ये थोड़ा कम बेंड करेगी तो इमेज जो है इधर नहीं बन सकती। अगर बेंडिंग स्मॉल है तो इमेज किधर बनेगी? इफ द रे बेंड्स बट द बेंडिंग इज स्मॉल, बेंडिंग इज स्मॉल, अगर मैंने यहां से थोड़ा सा बेंड किया, मान लो इधर, तो image formed will be somewhere over here and this will be virtual image. रियल की जगह वर्चुअल इमेज बन जाएगी अगर बैंडिंग स्मॉल हुई तो। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल बीटा, आई किसके इक्वल है? आई इज अल्फा बीटा गामा के साथ रिलेशन आई का। बीटा प्लस गामा। आई इज अल्फा प्लस गामा, आई को तो मैंने चेंज ही नहीं किया, तो वो रिलेशन कैसे बदलेगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, आई का तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। सो आई इज अल्फा प्लस गामा, आर इज, आर अब एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा। तो आई तो सेम ही था, इमेज का डिस्टेंस अब कितना हो गया? प्लस वी माइनस वी? माइनस माइनस बी। माइनस वी। और हमारे पास ये जो आर था, गामा माइनस बीटा की जगह दिस बिकम्स गामा प्लस बीटा, मतलब ये साइन बदल गया बीटा के आगे वाला, गामा प्लस बीटा, बीटा के आगे वाला साइन चेंज हो गया, या प्लस बीटा था, दिस बिकम्स माइनस बीटा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं माइनस वी पुट करूं, रिजल्ट तो वही आ गया, IP1 इज माइनस वी, तो ये जो माइनस आ रहा था और यहाँ पे भी माइनस आया, माइनस माइनस प्लस एंड रिजल्ट विल बी सेम। डायग्राम चेंज हुआ, आर की वैल्यू चेंज हुई, पर रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। सो पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका। Reflected light, when reflected light moves from rarer to denser medium, when reflected light moves from rarer to denser medium, then after refraction, after refraction, the diffracted ray moves away from principal axis. The refracted ray moves away from principal axis. Thus, a virtual image is formed in the rarer medium at I. Virtual image is formed at the rarer medium at I using Snell's law. Using Snell's law. तो फिर आपको इसको कॉपी करना है बस।
तो इसको कॉपी कर सकते हो, सिर्फ साइन बदला है तो आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा वो। Concave towards rarer means इस थर्ड केस 1C लिख सकते हो इसको। रियल वर्चुअल मैं नहीं बताता, आप खुद डिसाइड करना। बट हमें दिया है कि अगर हम कनकेव साइड से देखें, so the other side से, तो इट्स अ कनकेव सरफेस। The principal axis ये ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे। नॉर्मल किधर बनाओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? लेफ्ट। Left. तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पॉइंट ए से लाइन ज्वाइन करेगी, दिस इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे का एंगल अल्फा, ये गामा, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल में अल्फा। ये रे का एक्चुअल पाथ था। It's moving from rarer to denser. It bends towards normal, away from normal. 2 सर वो बीटा नहीं आएगा मतलब जो अल्फा अल्फा कर रहा है। बीटा इमेज के साथ नहीं बनता, ये तो नॉर्मल है। ये भी इधर बेंड करेगी। अगर ये इधर बेंड करेगी तो इमेज किधर बनेगी? सर वो फिर आई नहीं आना चाहिए। कौन सा? ये एंगल आई होगा। जहाँ अल्फा लिखा है। इमेज किधर बनेगी if it bends towards normal? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल कहाँ पे? ONC के बीच में। ONC के बीच में। So final image is found somewhere over here. This will be our refracted ray. रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल R। अगर ये एंगल R है, ये I है, दिस विल आल्सो बी R। ये पॉइंट A, सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस R, I किसके इक्वल है? I ये एंगल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल I है। I किसके इक्वल है? गामा माइनस अल्फा। ये एंगल। This is equals to gamma minus alpha, and R is I is gamma minus alpha, R is gamma minus beta। यही बन रहा है रिलेशन डायग्राम से। देखो ये रिलेशन, गामा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस बीटा। मतलब अब अगर मैं स्नेल्स लॉ पे आऊं,
गामा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस बीटा, मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, अल्फा के आगे भी, तो अल्फा का साइन भी चेंज करना है और बीटा का भी करना है। ये माइनस, ये प्लस, फाइनल रिजल्ट सेम ही रहेगा। सो डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम देखो, बिकॉज डायग्राम आपको खुद बनाने पड़ेंगे, वो डायग्राम देंगे नहीं। तो अगर डायग्राम ठीक बना लिया फिर ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। डायग्राम चेक करो पहले, समझ में आ रहा है कैसे बना। कनकेव टूवर्ड्स रेयरर, ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्चुअल इमेज, जिसमें एक ही केस है, रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। तो डायग्राम बनाओ एंड देन कंप्लीट, इसको खुद से कंप्लीट करो, अपने आप पूरा करो। मैं डेरिवेशंस भी हाइड कर दी है। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड ऊपर से एक सेंटेंस लिख लो, as the reflected light as the reflected light bends towards the normal, a virtual image is formed at I. A virtual image is formed at I. और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करो। फ्रॉम नॉर्मल दो केस बन जाएंगे अगर बेंडिंग लार्ज है। एक्चुअल बात तो ये हो गया, अगर बेंडिंग लार्ज है तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट रियल, the angle beta. ये डिस्टेंस माइनस यू माइनस आर और प्लस वी। आई किसके इक्वल? आई। गामा माइनस आर, आर इज दिस एंगल। गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, गामा माइनस अल्फा, मतलब सिर्फ बीटा का साइन बदलना है, माइनस की जगह प्लस। बाकी सारी डेरिवेशन फिर से वही। सो डायग्राम देखो, डायग्राम क्लियर है सबको? ऊपर, बिकॉज ये फर्स्ट केस के अंदर ऊपर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, पहले ऊपर लिख लो। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन if object is placed in denser medium of refractive index mu1, if object is placed in denser medium of refractive index mu1, then light reflected by the object moves from denser to rarer medium and bends away from the normal The ray of light suffers refraction at A, and if the bending is large, ray of light suffers refraction. Take the repeat.
डेंसर टू रेयर मीडियम के बाद एक बार रिपीट कर दो. and bends away from normal if the bending is large. Real image is formed at I. Real image is formed at I. अब फिर से भाई यूजिंग स्नेल्स लॉ एंड कर दो सॉल्व इसको. सेम रिजल्ट आना चाहिए एंड में. डायग्राम देखो सबको समझ आ रहा है. इसमें एक ही केस बनेगा सिर्फ वर्चुअल इमेज का और ऊपर केसेस कन्वेक्स टुवर्ड्स डेंसर. कन्वेक्स टुवर्ड्स डेंसर. Convex towards denser and virtual image. आ रहा है सेम आंसर. हो गया सॉल्व. हाँ जी सर आ गया सेम आंसर. अब एक आपका होमवर्क के लिए हो गया. Concave towards denser virtual image. Light moving from denser to rarer. Concave towards denser virtual image. Light moving from denser to rarer. Concave towards denser and virtual image. So उसको खुद से डायग्राम बनाना है concave towards denser का. एंड सारा डायग्राम बना के यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आर और फिर उसको ऐसे ही सॉल्व करना है. सर इसका क्वेश्चन आता कैसे, मतलब क्या होती है स्टेटमेंट? इसमें वो आता है कि आपको सिर्फ एक लेंस दी मतलब एक सरफेस दिया होगा कौन सा है कि जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह से आएगा कि वो कहेंगे फाइंड रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर. मान लो ऐसे डायग्राम दे देंगे. ये कुछ भी दे सकते हैं कि ये रेयर है, ये डेंसर है,
ये ऑब्जेक्ट है। आपको डायग्राम पूरा करना होता है और यूवी और आर में रिलेशन निकालना है। तो एक सेट में अगर उन्होंने ऐसे सरफेस बनाया है, दूसरे सेट में ऐसे बना देंगे, रेयर डेंसर की जगह डेंसर रेयर कर देंगे, बट इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया होगा और ये सरफेस दिया होगा कि कन्वेक्स टूवर्ड्स रेयर है या कनकेव टूवर्ड्स रेयर है, और ये रेयर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयर है, बस। और फिर आपको इनमें से कोई 6 में से एक डेरिवेशन आ जाएगी। सर लार्ज एंगल या स्मॉल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे खुद प्रेडिक्ट करना होगा, वो बताएंगे? कैसे? जैसे हमने तो आई और आर को हमेशा स्मॉल ही लेना है। आई और आर स्मॉल है तो अल्फा बीटा गामा ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएंगे। सर जैसे हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अलग अलग केस किए ना कुछ में, तो वो बताएंगे कि हाँ वो बताएंगे कि रियल का बनाना है या वर्चुअल का बनाना है। आपके सेट के अकॉर्डिंगली होगा वो कि आपको क्या बोला उन्होंने, रियल इमेज बनाओ या वर्चुअल इमेज बनाओ। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। और इन 6 मतलब ये जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो एक ही है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कल। और आपका बैच बिकॉज बहुत सीरियसली पढ़ता है तो सिर्फ स्कूल वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा जैसे स्कूल में आते हैं। कंपटीशन का कुछ नहीं कराना मैंने आज के बाद इस बैच में, ना थ्योरी ना कोई न्यूमेरिकल। बोर्ड पे फोकस करूंगा पूरा जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता, बिकॉज अब सारे बहुत पैशनेट हो एंट्रेंस को लेके, बहुत सीरियसली पढ़ते हो, बहुत टाइमली असाइनमेंट सबमिट करते हो। तो आपको वही तैयारी कराते हो। अगर स्कूल की करनी है तो दैट्स मेरा भी काम आसान हो जाएगा सारा।